صفدر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے فرسٹ میڈیٹیشن کیمپ لگایا تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، 76 ٹاپ پہ 15 روزہ یہ پروگرام تھا، اور اس میں جہاں پر ہم ٹھہرے تھے برف ہی برف اور مائنس میں ٹیمپریچر، اور بڑی میڈیٹیٹو واک ہم کرتے تھے نکل کے، اور ایک ہی جگہ پہ پڑے رہنا، اور پھر پہلے 5-7 دن میں تو ایگو کی پیڈلنگ وہ رکی، پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شیئر کیا کہ بھائی اب اسٹلنس فیل ہو رہی ہے، تو وہ بڑا زبردست تھا۔ Day 1 Day 2 Day 3 اس پہ ہم نے کافی ویڈیوز بھی بنائی تھی، وہ سیو ہے میرے پاس، تو بڑا مزہ آیا تھا اس میں نا، بڑے، اور پاکستان کے تمام صوبوں سے اس میں لوگوں نے شرکت کی تھی، بڑی دور سے لوگ آئے تھے۔ اب دیکھنے سننے سمجھنے میں یہ چیز عجیب سی لگتی ہے کہ یار کچھ نہ کرنے کے لیے اتنی دور جایا جا رہا ہے، کچھ نہ کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا وہاں پہ کرتے کیا رہے ہو؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں یار، کچھ کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کچھ نہ کرنے کے لیے ادھر گئے تھے۔ ہاں جی بھائی، کچھ نہ کرنے کے لیے مثال کیسے دوں گا؟ ایک بندہ 25,000 کی شراب کی بوتل لا رہا ہے، 25,000 روپے بھرے ہیں، شراب پینے کے بعد چپ کر کے بستر پہ بیٹھے ہیں۔ اصل قیمت کچھ نہ کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ اس کی ساری ایکٹیویٹیز رک گئیں، منصوبے رک گئے، پاسٹ رک گیا، سارا کچھ رک گیا، تو اس نے پیسے کیوں بھرے ہیں؟ اچھا، دوسری مثال ہے، آپ نے شاید نوٹ کیا ہو یا جو سن رہے ہیں تو شاپنگ کرنے آپ جاتے ہیں، پیسے بھرنا چاہتے ہیں، ایکچولی کچھ نہ کرنے چاہتے ہیں، کچھ کر کر کے تھک کے نا، وہ ذرا اس میں آپ نا ادھر ادھر ساری چیزوں سے فوکس ہٹا کے کسی ایک چیز پر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاپنگ بیسیکلی ہوتی ہے ضرورت کی ضرورت پڑی آپ چیز، آپ خام خواہ شاپنگ کرنے کی ہماری دنیا آتی ہے، ایسے تو نہیں شاپنگ مالز اور یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، وہ انسانوں کی اس نفسیات کو سمجھتے ہیں، انہیں نا اس زون میں جانے کے لیے نا، اصل میں پرانے دور کا چین تھا نا جو، اس میں ایک ورڈ تھا وہ بھی اس کا کیا مطلب؟ وہ بھی کا مطلب ہے نان ایکشن۔ اچھا، وہ جو پرانے چینی صوفی تھے نا، وہ سب سے بڑی نیکی قرار دیتے ہیں نان ایکشن۔ اچھا، یعنی کچھ نہ کرنے کا، کچھ نہ کر مطلب ان کی ایکٹیویٹی میں بھی نان ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بیسک ریزن یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے نا، یہ ہمارے کنڈیشننگ پروسیس کو نا اسٹرانگ کرتی ہے۔ کہ آپ نے ایک لیبل جمع کیا اپنی ایگو کے تحت ڈاکٹر ہونے کا، اب آپ کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ڈاکٹری نہ کر رہے ہوں آپ نا، وسائل نہ بنے کہ آپ کلینک پہ جا سکے اور نہ کریں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو ایگو کو انرجی ملتی ہے، آپ کے جو اسٹرانگیسٹ آف لیبلز ہوتے ہیں نا، اسٹرانگیسٹ آف لیبلز، وہ ہو گیا آپ کا پیشہ، وہ ہو گئی آپ کی فیملی، وہ ہو گیا آپ کے بزنس کولیگس۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا، ایگوئک پرسنالٹی، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ ریچارج ہوتا ہے انہی آئیڈینٹیفیکیشنز پر۔ اس لیے آپ روزانہ اپنے دن کا اکثر حصہ انہی ذریعوں سے ایگو کو مضبوط کرتے گزارتے ہیں۔ یا آپ ایگو جو جی رہا ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کہ کون بندہ ہے جو ایگو کو زیادہ جی رہا ہے۔ ایگو کو جیا نہیں جاتا ہے، ایز ایگو ہی جیتے ہیں نا ہم، یوں کہتے ہیں نا، تھوڑے سے اسٹل لمحات آ گئے تو آپ ایگو سے باہر آ گئے، بلا وجہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں کر رہے ہیں۔ ایگو ایک بندہ، انتہائی ایگو ایک بندہ جو ہوتا ہے نا،
उसको अगर चेक करना हो ना, किसी को चेक करना हो कि कौन कितना इक्विक है, पता नहीं किस रेफरेंस में बात कर रहा था, वो जो बेसिकली उसके एक्शंस होते हैं ना रूटीन के, इसे मैं कहता हूँ आदती जीना। तो अगर आप दिन का ज्यादा हिस्सा आदतें जी रहे हैं, आदतें जीने से क्या मुराद है कि आप दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में खास तरीके से आप बिहेव करते हैं, बिहेव करना सीख गए हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने पूरे उस सेटअप के साथ ना, अगर आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा ही करेंगे। अच्छा जी, सर्टन सिचुएशन आती है, सर्टन सिचुएशन, ये ट्रैफिक जैम है, आदत बनी हुई है गुस्सा करना है। हाँ, सर्टन सिचुएशन है कि जी बच्चे ने खास हरकत की, आदत है इस पर गुस्सा करना है। ठीक है, ये होती हैं आदतें। अगर आप आदतें जी रहे हैं तो आप अच्छा, मतलब मैं आपके सामने सिनेरियो लाऊं और मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं आपके बारे में कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक हो, मैं आपके बेटे को सामने लाऊं, उसकी बातें करूं या उसके हवाले से कुछ कहूं तो मुझे पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपकी बीवी का जिक्र आएगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, बिजनेस की बात आएगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। आई नो आपके बारे में, क्योंकि आपके साथ इतना रहना हो जाता है तो एक मुझे पता है आपको रिएक्शन देते मैं देखता हूँ। ठीक हो, तो अगर आपने पहचानना हो ना, अपने आप में ईगो की स्ट्रेंथ देखनी है। ईगो की स्ट्रेंथ देखने का एक ही तरीका है कि मैं दिन का कितना हिस्सा आदतें जीता हूँ, रूटीन के ऑटोमेटेड रिएक्शन देता हूँ। मतलब एक रिएक्शन है ना, एक जनरल रिएक्शन मैं कहता हूँ कि एक बंदा आता है आपको थप्पड़ मार देता है, ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या है, आप थप्पड़ मार देते हैं। कोई आके गाली देता है तो जनरल रिएक्शन ये है कि आप भी गाली देंगे, तगड़ा है तो आप दिल में गुस्सा करेंगे, पैनिक अटैक आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है आपने आदत की है। अच्छा, इसको आप आदत से हट कर कैसे जी सकते हैं, सवाल उठता है ना कि अगर मैं ऐसे ना करूँ तो फिर कैसे करूँ। मजे का कौल है, गालिबन हज़रत अली से है कि अगर आपको गुस्सा है ना तो उसको सिर्फ 20 सेकंड दे दें, 20 सेकंड बाद गुस्सा करें। आप ट्राई करके देख लें, कभी आप गुस्सा नहीं कर सकेंगे। अब आप आदती जीने से बाहर खड़े हैं, अब आपने उस स्पेस में अपने आप को भी होने का मौका दिया है, ना कि वो मेंटल हैबिट जो आपने बनाई हुई है उसी को ही उगल दिया। हम ये करते हैं एज ईगो कि हम आदती रिएक्शन देते हैं, एक सर्टन सिचुएशन एंड यू कैन प्रिडिक्ट क्या रिएक्शन आने वाला है। इसको परखने का बेहतरीन तरीका है कि ईगो कितनी स्ट्रॉन्ग है, जितना आप आदतों को ज्यादा जीते हैं ईगो स्ट्रॉन्ग है। आपने नोट किया क्या गुजरता है जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, क्या गुजरता है जब आप नमाज में जाते हैं, इबादत में जाते हैं। उस वक्त आपको आदत जीने का मौका नहीं मिलता अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं। इवन आप मेडिटेशन में करें, आपको मेडिटेशन में डिफिकल्टी भी पेश आ रही है, तब भी आप आदत नहीं जी रहे। आपको सिंपली पता है ना कि मैं ड्राइव करूंगा यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, ये आदती दिमाग में सारे के सारा जो है ना डेटा स्टोर कर रखा है, वो आपको पूरा लक्ष्य दे देता है। मेडिटेशन में बैठते हैं और मेडिटेशन में दिल नहीं लग रहा, फिर भी एनिमल सिचुएशन है, फिर भी वो आदत नहीं है। इसलिए जितने भी मेडिटेटर्स हैं, जितने भी मजहबी मुबल्लिगीन हैं, वो कहते हैं इबादत में दिल नहीं भी लग रहा तो इबादत करी जाओ। अच्छा, मेडिटेशन में दिल नहीं भी लग रहा तो मेडिटेशन करी जाओ। आपको पता नहीं कि इस वक्त जो वाक़या हो रहा है ना वो ज्यादा अहम है बजाय उसके कि जब आप मेडिटेशन में एक्सपर्ट हो जाओ और बैठते ही स्टिल हो जाओ। क्योंकि आप बेसिकली आदती जीने से रियल टाइम में जीने की तरफ आ रहे हैं, और रियल टाइम में जीना माइंड के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड को पता नहीं ना, और माइंड को तो चाहिए ना तसल्ली, मैं ये करूंगा ये होगा। अब आप बैठे हैं और आपको पता नहीं क्या हो रहा है, जीवन बोरियत हो रही है, थकन हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। आदती जीने का लेवल जिसमें जितना ज्यादा उसकी ईगो उतनी स्ट्रॉन्ग।
ये रूल है, अपने आप को परखना है ना अगर आपने कि आप कितने परसेंट ईगो है, कितने परसेंट जिंदा है, क्योंकि ईगो नाम जिंदा होती है, इसको आप किसी भी तरीके से परख लेना। इवन जो माइंड साइंसेस माइंड पर ही सारी तवज्जो मरकूज रखते हैं, दे नो ईगो इज फेक। जो ये कहते हैं ना कि मैं माइंड हूँ सर तो सर, वो भी जानते हैं कि ये ईगो फेक है। सिंपल सी बात है ना, मैं अभी आपकी कोई ऐसी दवाई ईजाद हो जाए जिससे मैं आपकी मेमोरी जो है ना खुरच सकूँ, तो मैं अभी आपके साथ 2 साल उसके बाद रहूँगा तो नए लेवल सिखा दूंगा, नई चीज़ बना दूंगा, मतलब आप सरमद सुल्तान तक नहीं होंगे, एक बिल्कुल ही नए इंसान होंगे। तो रियल होते तो मिटते ही ना, तो आप अनरियल हैं तो मिटे ही। अनरियल ही होता है जो मिट सकता है, रियल कभी नहीं मिटता होता। तो ये लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग ईगो और वीक ईगो चेक करने का एक तरीका है कि कितनी देर आप दिन का हिस्सा आदतें जीते हैं और कितनी देर आदतों से बाहर आते हैं। मतलब अननोन में कितनी देर सफ़र करते हैं, नोन में कितनी देर रहते हैं। अननोन इज नेचर ऑफ लाइफ। ये इस वक्त जो हो रहा है ना, ये आपके साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ, आज के बाद कभी नहीं होगा। यहाँ जो हो रहा है वो सारे का सारा आउट ऑफ माइंड एक्टिविटी है। हाँ, जो अभी हो रहा है ये 10 सेकंड के बाद मेंटल एक्टिविटी बन जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि जो झील थी उसमें कश्तियाँ तैर रही थी, उसमें लोग घूम रहे थे, अब आपके पास रेफरेंस आ गया। इस पल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ सिंपली जान सकते हैं। तो ईगो के लेवल होते हैं। आप 100% ईगो है आपकी, मुकम्मल ईगो एक इंसान है, हर वक्त बेचैन, हर वक्त स्ट्रेस्ड, हर वक्त कुछ करने के चक्कर में, हर वक्त किसी मकसद पे नजर। अच्छा, आप 90% ईगो हैं तो 10% जो बच गया है ना आपकी एनर्जी का हिस्सा, वो लाइफ है, वो हस्ती है, वो गॉड के साथ आपके बिताए लम्हात में। यूँ समझ, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह उठें एक बिल्कुल ही नई जगह पर, तो आपकी एक दिन तो कंडीशन नहीं होगी जो आपको याद दहानी कराएं आपकी गुजरी स्टोरी, तो वो लम्हे आपके जिंदा है। ऐसे ही इबादत में खड़े हुए आप और कनेक्ट हो गए किसी पल में, तो आपके लम्हात जिंदा है। ऐसे ही मेडिटेशन। अब ये बंदा जो है ना, ये 10% जो है ना, ये है 90% अच्छा, आपकी एक्सरसाइज बढ़ती गई, मशकें बढ़ती गई, स्टिल होते गए, लम्हे मौजूद में रुकने की प्रैक्टिसेस करते रहे, आपकी अपनी हर एक्टिविटी को तवज्जो देते रहे, तो 20% हो गई जी ये, और 80% ईगो अब हो रही है कमजोर। ईगो से जो एनर्जी आप छुड़ा लेते हैं वही एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं जीने में। अच्छा, नेचर ने स्कीम ऐसी बनाई है कि अगर आप सारे के सारे सर का सर स्ट्रॉन्ग ईगो बन चुके हैं ना, फिर वो आपको मौका देती है वाया नींद। अच्छा, नींद में आपकी जो ईगो की पैडलिंग है ना, वो स्टॉप हो जाती है। और जितनी डीप स्लीप होगी उतनी ज्यादा डीप स्लीप होगी उतना आपकी पैडलिंग रुक गई। मैं का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया, आपकी जेंडर खत्म हो गई, आपकी नेशनैलिटी खत्म हो गई, सारे के सारे लेवल जिनसे आपने अपने आप को रखी हुई है ना, डॉक्टर है ना, इंजीनियर है। ये नींद अगर हो, मगर नींद में सोचता हूँ अक्सर कि अगर नींद ना हो तो बंदा वैसे मेंटल हो जाए। नींद ना होती ना तो मेरा ख्याल है पता क्या होता, इंसान ज्यादा मेडिटेटिव होने की कोशिश करता। मेडिटेशन नेमल बदल है। मेडिटेशन तकल्लुफ से तारी की गई नींद है। तकल्लुफ से नींद नेचुरली अकरिंग मेडिटेशन, नेचुरल अकरिंग मेडिटेशन हो गई, और मेडिटेशन अननेचुरली इंट्रोड्यूस्ड नींद हो गई। सही ठीक, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लाइफ एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा पोटेंट पावरफुल करने का एक ही तरीका है कि आप
ईगो के जो ब्रेक्स हैं उनके दरमियान अपनी एग्जिस्टेंस को फील करें। और बेसिकली ये जो लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं उसी स्पेस को एक्सपीरियंस करने जाते हैं। जो लोग नशे की तरफ जाते हैं उसी स्पेस को, वो बहुत जानदार स्टेट होती है, उसी स्टेट को एक्सपीरियंस करने जाते हैं। वाह। जो खामखा के लिए उठे और मेडिटेशन पे शॉपिंग करने निकल गए वो भी उसी स्टेट को ही एंजॉय करने जाते हैं। आप उठे और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, आप गए और थिएटर में मूवी देखा है, तो ये बेसिकली आप उसी ब्रेक को एक्सपीरियंस करने गए हैं। आपका बेसिकली मजे का साइकिल है जो आज के इंसान के साथ चल रहा है। वो पैसे कमाता है, उस प्रोसेस में उसकी ईगो स्ट्रांग होती है, उस ईगो को कमजोर करने के लिए फिर उस पैसे को वो खर्च करता है। ये है आज के इंसान का अलमिया। या हमारे जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि आधी उम्र बंदा पैसे कमाता है, सेहत कमाता है, और फिर बाकी आधी उम्र उसी पैसे को सेहत पाने में खर्च कर देता है, और कम ही ऐसा होता है कि वो दोबारा पा ले। तो जितने परसेंट आप ईगो हैं उसका बाकी आप देख लें, बाकी हिसाब ये के करीब है। और ईगो तय करने का वही एक तरीका है कि अपनी आदतों को परखिए कि मैंने वही ऑटोमेटेड रिएक्शन दिन में कितनी दफ़ा दिए, उसी रास्ते से ऑफिस जाना। ये जदीद जो इंस्पिरेशनल और सेल्फ बुक होती हैं वो बता रही होती हैं कि आपको गाहे ऑफिस जब जाएं तो रास्ते बदल के जाएं। अच्छा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि ड्यू हो जाता है ना, आदत नहीं जीनी पड़ती। अच्छा। वो आदत है एक रास्ता सही आसान है, डायरेक्ट है, करीब है, यूं चलाऊंगा गाड़ी और यूं पहुंच जाऊंगा। जब आप रास्ता बदलेंगे तो फिर आपको इर्द गिर्द देखना पड़ेगा, खड्डे देखने पड़ेंगे, इशारे देखने पड़ेंगे, सारा कुछ बदल गया है ना। सही। अच्छा, वो कहते हैं कि जी अगर आप सीधा पैर पहले पहनते हैं उल्टा पैर बाद में जूते में, तो आप कुछ अर्से यूं करें कि उल्टा पैर पहले पहने, आदत खत्म हो जाएगी, आपको जीना पड़ेगा। बेड की इस तरफ उतरते हैं तो उस तरफ उतरना शुरू कर दें। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जिंदगी से जोड़ती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन इम्पैक्ट उसका जो है ना लार्जर बड़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके बच्चे हैं, बच्चों से जब आप प्यार से बात करते हैं उसमें सारा कुछ ऐसे जैसे भूल गया, सारे मसले जैसे भूल गए। बच्चे को आपने गले से लगाया तो जैसे सारा कुछ, अब ये क्या हरकत है, इतना बड़ा वाकया थोड़ी किया, आपने मेडिटेशन थोड़ी की है, आप किसी ट्रिप पे थोड़ी गए हैं, कुछ भी नहीं किया, एक छोटी सी हरकत थी, ये आदत नहीं थी। आदती तौर पे खैर अब तो हमने आदती तौर पे बच्चों से प्यार करना भी सीख लिया है। हम देखते हैं कि जी मैं गेस्ट आया बैठा है, मेहमान आया बैठा है, उसके सामने बच्चे से प्यार से बात करनी है, और ये भी आपकी आदत है। सही। दूसरा नहीं है, फिर आप कैसे बिहेव करते हो वो रियलिटी है। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो होते हैं ना वो रूडली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, ये उनकी आदत होती है। लेकिन कभी कभार ऐसे बिला वजह बच्चे पे प्यार आ जाता है, आप आदत से बाहर निकल के खड़े हो गए, और वही लम्हा एनर्जी देता है। हमारी बदनसीबी ये है वो लम्हा जो एनर्जी दे रहा है, खुश कर रहा है, कंटेंट कर रहा है, उसको छोड़ के हम फिर वही आदत जीते हैं। बच्चे ने बर्तन गिराया, आप गुस्सा हो गए, चुप कर जा, बकवास न कर, शोर न मचा, काम कर रहा हूँ XYZ, ये आपकी आदती जुमले हैं। सही। और आपने बच्चे को देखा और काम का आपको प्यार आ गया। आदती जीना है, आप ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या वॉक करने जा रहे हैं, रास्ते में जितने फूल हैं उनको इग्नोर करके जाने की आपकी आदत है। लेकिन किसी वक्त आप ऐसे चलें सुबह सुबह उन सारे फूलों को देखते जाएं, आदत से बाहर आके जी रहे हैं, आप जिंदा हैं। सही। इसको ईगो से आज़ाद होने का मतलब है ईगो के बगैर जिंदगी के तजर्बे को देखना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल इसलिए बना दी गई है कि हम सारे का सारा फेक हो गए, हम सारी की सारी ईगो हो गए हैं। तो एक अनरियल के लिए रियल को एक्सपीरियंस करना बड़ा अपहिल टास्क है। कहते हैं कुछ कारनामा कर दिया है मेडिटेशन में बैठ करना,
भाई तुम मेडिटेटिव हालत में पैदा हुए हो, कारनामा क्या है? अपने आप के साथ बैठे हो, ये क्या कारनामा है? 5 वक्त की नमाज में याद है हम मुकाबला करते थे बचपन में, दोस्त आपस में देखते हैं पहली नमाज किसकी कज़ा होती। अच्छा, मुकाबला। तो आप सिंपली इबादत को आपने कोई ऐसा मिशन बना दिया कि आपकी तवज्जो ही इस बात पर है कि मेरी नमाज कज़ा ना हो पाए, दोस्तों से हार न जाऊँ। आपने कोई कारनामा थोड़ी सर अंजाम दिया, अपने साथ बैठे हो बस। ये ईगो के काम करने के बेसिक ढंग है। बटा कुंडी आ गया जनाब। यहाँ हमने स्टे करने का इधर सोचा था ना, लेकिन फिर नहीं पहुंच सके। चलो यहाँ से गुजर तो सके हैं बटा, ठीक है ना, देने में देखा है। और आपको पता है हम यहाँ से कितनी दफ़ा गुजर रहे हैं? पहले भी हमारे ट्रिप हुए ना, हम जी यहाँ से कम अज कम 5वीं 6वीं बार गुजरे हम यहाँ से। एक तो पहली बार सबसे पहला ट्रिप हमारा जो आपस में हुआ था, जो हमने अनाउंस नहीं किया हुआ था, वो भी इधर से गुजरे थे हम, ठीक है। उसके बाद हमने गए यहाँ से थे, वापसी हमने पेशाम वाले रास्ते से की थी। जब मिनी मर्ग हम गए थे, मिनी मर्ग में बड़ा खूबसूरत सीन था, क्या बात है। उधर भी बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि क्या जगह है। बहुत कम लोग इतनी दूर गए हैं। बहरहाल हमने जाना था, हम पहुँच गए। कराची वाला याद है आपको, जब हमने सिंध का, बलूचिस्तान का वो पूरा हमने किया था, पूरी बेल्ट का, उनमें से आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी थी? कोस्टल हाईवे से शुरू हो जाए, सबसे बेहतरीन जगह जो थी वो थी जीवानी बीच। हाय हाय हाय, मतलब उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव थी। हाँ हाँ हाँ, हालांकि खूबसूरत शायद और मारा ज़्यादा था, हाँ, लेकिन एनर्जी और वाइब्स वहाँ की बड़ी एनर्जेटिक थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ग्वादर भी मज़ेदार था। अच्छा, ये हमने स्टार्ट किया था टूर रहीम यार खान से, उधर से आपको तो लाहौर से शुरू हो गया। मेरा तो लाहौर से शुरू हुआ ना, आपको मैंने रहीम यार खान से पिक किया, तो चले वहाँ से शुरू कर देते हैं ना। रहीम यार खान के बाद हम अपने सिंध वाले दोस्तों से मिले हैं, लाड़काना, और वो वाइड ट्रिप था जिसमें हमने बहुत सारे जो है ना मशहूर मज़ारात देखे, जिनमें सेवन शरीफ भी देखा था, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का भी देखा था, सच्चल सरमस्त का भी देखा, बेनज़ीर भुट्टो का भी देखा। हाँ, सही। अच्छा जी, और सही। फिर कराची से हम चले गए आगे ग्वादर की वो फिर कोस्टल हाईवे बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। मंगोल नेशनल पार्क के अंदर चले गए। हंगोल था कि हंगोल नेशनल पार्क में वो जिधर हम ऊपर गए थे, जहाँ पे वो हिंदुओं की बनी हुई थी चीज़ें, वो क्या था, वो माता चिकली, क्या नाम था उसका? नाम नहीं आते, लेकिन खूबसूरत बनाई हुई थी जगह, पीसफुल जगह थी, और बहुत भी पुरानी थी। गारों में जो जैसे मेडिटेशन की। अच्छा, एक रात हमने कैंप भी लगा के कहीं रुके थे, वो कौन सा बीच था? और मारा के नाम भी बड़े सही, काफ़ी बीच। फिर हम एक जगह पे जाने लगे थे जहाँ पर कश्ती हमने वो बोर्ड करवानी थी स्पेशल हायर करके, एक आइलैंड पे जाना था जो हमने मिस कर दिया। चलो अगली बार पसनी में गई, पसनी, हाँ। अगर वो उधर जाते ना, बड़ा सीन होना था जजीरे वाला, उधर जाना है। वो लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह है जहाँ से दरमियान में, आप समंदर के दरमियान में हो जजीरे में, और चारों तरफ पानी। जाते हैं यॉट वगैरह करा के। एक कैंप हम ऐसा ही करेंगे यॉट में। एक ना समुद्री सफर होना चाहिए यॉट में, कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए। वो यॉट का बेसिक सफर ये होता है कि यॉट बनी होती है इस तरह कि वो जैसे आपका घर है। अच्छा, आप समंदर में जस्ट ठहरा देते हैं उसको, बाकी वो सारा घर की तरह बना होता है, उसमें किचन, वॉशरूम, सारी फैसिलिटीज, सारा कुछ होता है। वो बेसिकली यार्ड का थीम सफर नहीं होता कि यहाँ से यहाँ तक जाना। वो सिंपली जाएं आप किसी जजीरे के पास, पानी में ही रहें, बाहर निकले तो बाहर पानी,
وہ سفر ایسے ہوتا ہے. وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں سمندری وہ ہوتا ہے کروز. وہ ہوتا ہے 1.2 ادر پوائنٹ. اچھا یہ یاٹ سے باہر آر پار نظر آتا ہے یعنی کہ شیشہ لگا ہوتا ہے پانی نظر آتا ہے. الماریاں ہوتی ہیں کھڑکیاں ہوتی ہیں سارا کچھ. اچھا یہ ایک ہوتی ہے آپ دوز بھی ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ تو وہ ہے نا جو زیر زمین چلتی ہے زمین کے نیچے زیر پانی. ہاں پانی زیر آب. اچھا یہ اوپر ہوتی ہے. یہ اوپر ہوتی ہے یاٹ اوپر ہوتا ہے جہاں. اچھا یہ آپ دوز کس مسئلے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ آپ دوز اور فوڈ سیم تو ہے. آپ دوز اور یاٹ سیم تو نہیں ہے نا؟ یاٹ نہیں اور دوسری کیا کہیں گے جو زیر آپ چلتی ہے. آپ دوز اسی کا اردو نام ہے وہ آپ نے انگریزی میں کہا تھا. یاٹ نہیں یار دوسرا کیا بولا؟ دوسرا بھی نہیں بتایا تھا. ایک آپ دوز ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے یاٹ ہوتی ہے ایک شپ ہوتا ہے ایک نیچے جو چلتا ہے اسے آپ دوز بھی کہتے ہیں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں میرے آپ ہوتی ہے. سب ٹائٹینک میں سفر کر سکتے ہیں. ٹائٹینک جہاز چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہوا ہے. ٹائٹینک ٹھیک ہو گیا تو لے چلیں. کیٹ ونسلٹ کو بھی بلا لیں جیسے کیٹ ونسلٹ کو بھی بلائیں اور آپ کو نہ بلائیں. آپ ہیں آپ جو ٹائٹینک خراب ہوا ہے نا اس کو اپنے روحانی تصرف سے چلائیں. اس میں آپ کے سارے سبسکرائبرز کو بھی بلا لیں. روحانی تصرف کیا ہوتا ہے؟ روحانی تصرف یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرشد نگاہ ڈالتا ہے نا تو وہ چیز جو ہے نا آپ کے قابو میں آ جاتی ہے. اس کو میں کہوں تو کیسے کہوں گا تصرف سے باہر کھڑے ہو جائیں. تصرف ہے تصرف سے باہر کھڑے ہو جائیں تو ہم تصرف ہی کر رہے ہیں ایسے قبضہ. ہاں قبضے سے باہر کھڑے ہیں تو آپ یہ صوفی کی حالت ہے. یہ تصرف ہے. تصرف سے باہر آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تصرف فرمائیں. ہمارا جو تعارف ہے نا روحانی شخصیات کے ساتھ ایسے کروایا گیا کہ ایسی شخصیت ایسی روحانی شخصیت جو تصرف کر گئے یہاں سے چیز اٹھا کے ادھر لے آئے. لالچی دماغ کی مجبوری ہے. یہ لالچ ہے. یہ پاور کی خواہش ہے. میں تو سیدھا تصوف کو کہتا ہوں دا آرٹ آف لائف. تصوف کسی دوسری دنیا پہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. اچھا اگر آپ یہ زندگی کامیابی سے جی لیتے ہیں نا تو آپ خود بخود اس راستے پہ کھڑے ہیں کہ آگے جو بھی آپ کا سفر ہے جس بھی شیپ میں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے. اس وہاں بھی تک آزمائی کرنا چھوڑ دیں کہ آگے ہم کیسے درخت بن کے آئیں گے یا انسان بن کے آئیں گے یا کون سے انسان بن کے آئیں گے. جو بھی چیز توجہ بٹائے نا دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرے نا وہ نقصان ہے. جو بھی چیز آپ کو اپنی طرف پھینکے اور جسے آپ مرشد کہتے ہیں نا گرو کہتے ہیں اس کا بیسک کام ایک ہی ہے. وہ آپ کو اپنی طرف واپس دیکھتا ہے. اپنی طرف آپ کو اپنی طرف لوٹا دیتا ہے. اگر وہ کسی اور طرف آپ کو کرائی جا رہا ہے نا متوجہ یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا اس بازار پہ ہو گے تو یہ ہو جائے گا اس مندر میں ماتھا ٹیکاؤ گے تو یہ ہوگا. وہ آپ کو پھینک رہا ہے دوسروں کی طرف. تو یہ بیسیکلی رانگ نمبر ہے. یہ بھی رانگ نمبر ہے. سیکھے کی لینگویج رانگ نمبر ہے. صحیح. اچھا یہ آپ نے بڑی زبردست ڈیفینیشن بتائی ہے. یہ تصوف جو ہے وہ آرٹ آف لائف ہے. ہمیں تو تصرف کہہ رہا ہوں تصوف کا تعارف ایسے ہوا ہے کہ یہ تو ایسی یہ زندگی سے ہٹ جانے والی کوئی چیز ہے کنارہ کرنے والی اور سب سے ٹوٹ کر ایک سے جڑنے والی. آپ نے تو اس کی ڈیفینیشن ہی بڑی ہیوی کر دی. یہ تو غیر مؤثر ہوگی نا. نہیں ویسے واقعی یہ تصوف کو جو ہے نا یہ تو یہ یعنی کہ آپ آرٹ آف لائف کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ نے بڑا اسے کنیکٹ کر دیا ہے جدید دور کے ساتھ اور ینگسٹرز بھی اس پہ توجہ کر سکتے ہیں اگر یہ آرٹ آف لائف ہے. کیونکہ نوجوانوں کے تو ذہن میں یہ بات ہے تصوف پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہے جس میں بڑی تپسیاں کرنی پڑتی ہیں. نوجوانوں کے نہیں. آرٹ آف لائف کیسے ہے یہ بتائیں آپ. اچھا تصوف ایک جو بھی نا کہیں نہ کہیں کسی کامیابی کو ٹچ کر آیا ہے کسی بھی فیلڈ میں اس کی بیسک نیچر پہ غور کریے گا. وہ تھوڑا سا اس کی زندگی میں دیکھیں گریس آ گیا ہے وقار آ گیا ہے ٹھہراؤ ہے. جو بیسیکلی جب آپ تصوف کہتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے نا. عبادت کا مقصد بھی یہی ہے نا. ٹوٹل سے کنیکٹ ہو گئے آپ کی زندگی میں ایک وقار ہو گیا. سارا کچھ آپ کو قابل قبول ہو گیا. آپ
खुदा के वजूद को मानते हुए सरेंडर करना सीख गए कि उसकी मर्जी के बगैर अगर पता नहीं हिलता तो ये जो हो रहा है ये उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी हो रहा है। ठीक है। तो मेरी मर्जी क्या है, मैं क्या हूँ? जब उसकी मर्जी ये है तो मैं उसके उलट सोच रहा हूँ, तो मैं बेसिकली रिफ्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस से आपकी ईगो तो मजबूत होती है, आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा कभी मजबूत नहीं होता। रेजिस्टेंस, हाँ। आप सारा दिन मज़ामत ही करते रहते हैं ना, वो कैसे? सारा दिन आप जो आपकी दौड़ धूप है उसको और से देखें ना, रेजिस्टेंस ना हो तो दौड़ धूप खत्म हो जाए, आप चलते फिरते रहेंगे, दौड़ धूप नहीं होगी। स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, काम आपके हो रहे होंगे, काम आप कर रहे होंगे और बेटर काम कर रहे होंगे, बोझल नहीं होंगे, हल्के फुल्के होंगे।